السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نئی دہلی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے منظم کیا گیا دھرنا ناکام، BRS قائد ہریش راؤ نے کیا دعویٰ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ تلنگانہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں تمام طبقات خوشحال، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا بیان۔ معین آباد میں جاری مجرا پارٹی میں SOT سائبراباد کا دھاوا، 14 افراد زیر حراست، گانجا اور شراب کی بوتلیں برآمد۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر سیاسی خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ریاستی وزیر سیتاکا نے BRS رکن خان ساز کونسل کے کویتا کی جانب سے BC طبقات کے نام پر کی جانے والی ہمدردی کو صرف سیاست میں برقرار رہنے کے لیے کی جانے والی جدوجہد قرار دیا اور کہا کہ کیوں انہیں BRS کے 10 سالہ دور اقتدار میں جیوتی راؤ پھولے کی یاد نہیں آئی اور کیوں BC طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرنے کے سلسلے میں قرارداد انہوں نے منظور نہیں کی۔ سیتاکا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی BC SC ST اور مائنارٹی طبقات کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کی ستائش کرنے کی بجائے تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ BRS رکن اسمبلی ہریش راؤ نے پٹنچیرو میں منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے نئی دہلی میں منعقدہ BC دھرنا اس لیے ناکام ہو گیا کیونکہ نہ تو اس میں راہل گاندھی نے اور نہ ہی سونیا گاندھی نے شرکت کی، جبکہ نئی دہلی کے دھرنے میں وزیر اعلیٰ نے تیلگو زبان میں بات کی اور اپنی بات کو وزیر اعظم اور مرکزی حکومت تک پہنچانے میں وہ ناکام رہے۔ ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ اس سے باز نہیں آتے تو ہم بھی اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ఈయన పని ఢిల్లీలో కూడా అయిపోయింది. మొన్న బీసీల ధర్నా అని ఢిల్లీకి పోయిండు, ధర్నా పెట్టిండు. ధర్నాకు రేవంత్ రెడ్డి ఏం చెప్పిండు? నేను రాహుల్ గాంధీని తోలుకొత్తా, ప్రధానమంత్రిని ఒప్పిస్తా, పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేపిస్తా అని మాట్లాడిండు. కానీ ఢిల్లీ దాకా పోయినాక అర్థమైంది ఏంది? ఈయన పిలిస్తే రాహుల్ గాంధీ రాలే. ఈయన ధర్నా పెడితే ఈయన పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీలో ఉండి ధర్నాకు రాలే, అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇయ్యలే ఈయనకు. లాస్ట్కి ఈయన వాపస్ వచ్చిండు. ఈయన వచ్చినాక తెల్లారి మాత్రం మిగతా PCC అధ్యక్షుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రిని అందరినీ పిలిచి సోనియా గాంధీ ఫోటోలు దిగింది, రాహుల్ గాంధీ ఫోటోలు దిగింది. రేవంత్ రెడ్డికి మాత్రం తలుపులు బంద్ పెడుతున్నారు. ఈయనని కలుస్తలేరు, వాళ్ళని పిలిచి ఫోటోలు దిగింది తప్ప ఈయన పిలిస్తే ధర్నాకు రాలే, ఈయన కలుస్తారంటే తలుపులు తెరవలే. ఇది ఇలా రేవంత్ రెడ్డి పరిస్థితి అయిపోయింది। وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس برسر اقتدار آنے کے بعد ریاست کے دلت اور پسماندہ طبقات کے علاوہ مائنارٹی طبقات خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مذکورہ طبقات کی ترقی اور فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان طبقات کے نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لیے 6,000 کروڑ روپے بجٹ میں بھی مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایک فلاحی اسکیمات بھی روبے عمل لائے جا رہے ہیں۔ BRS رکن اسمبلی جگدیش ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ BRS کے 10 سالہ دور اقتدار میں نہ تو حیدرآباد میں اور نہ ہی اضلاع میں پانی کا مسئلہ درپیش تھا، لیکن کانگریس کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پھر سے حیدرآباد میں پانی کے ٹینکرز نظر آ رہے ہیں اور پانی کی مشکلات کا عوام سامنا کر رہی ہے۔ اس طرح معمولی بارش کے بعد برقی سربراہی منقطع
की जा रही है, जबकि बीआरएस ने 24 घंटे बरखी सरबराह करने का रिकॉर्ड कायम किया था। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ పరోక్షంగా కంట్రోల్ తీసుకున్నాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఆర్పిఎఫ్ చేతుల్లోకి వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఇంకో 4 రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ చేతులకి పోతుంది నాగార్జున సాగర్. ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరం ఉన్న నీళ్ళను మొత్తం తీసుకుపోయినారు. వాళ్ళ వాటా మొత్తం దినంగా తాగంగా తెలంగాణ వాటాలో ఉండే నీళ్లు తెలంగాణ యాసంగి కావచ్చు, ఎండాకాలం మంచినీళ్ళ కొరకు కావచ్చు, హైదరాబాద్ మంచినీళ్ళు, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల మంచినీళ్ళ కొరకు పెట్టుకున్న నీళ్లను దొంగతనంగా దోసుకపోయాడు. ఒక్క మాట మాట్లాడలే ముఖ్యమంత్రి కానీ, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి కానీ, ఇతర మంత్రులు కానీ, నల్గొండ జిల్లా, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లాల మంత్రులు కానీ ఒక్క మాట మాట్లాడలే. ఎందుకో చంద్రబాబును చూసి వణుకుతున్నారు. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వాళ్ళ పార్టీ అధిష్టానాల కంటే ఎక్కువ చంద్రబాబుతో మంచిగా ఉండాలన్న ప్రయత్నం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు భయ మోడీతో మంచిగా ఉండాలని. बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ई राजेंदर और विश्वेश्वर रेड्डी के अलावा रघुनंदन ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अराजी की तफसीलात हासिल की और वाज़ेह किया कि इसके दस्तावेज़ात से ये बात मालूम हुई है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 2300 एकड़ अराजी यूनिवर्सिटी की है, ना कि हुकूमत की, जिस तरह तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत दावा कर रही है। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने HCU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से तकरीबन 1 घंटे तक तबादला ख्याल किया। 12లో HRD మినిస్టర్ హోదాలో గౌరవనీయులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు దెన్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖరరావు గారికి ఉత్తరం రాసి ఈ భూములు 2185 ఎకరాల భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భూముల్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పేరు మీద ఎలినేట్ చేయమని చెప్పారు. ఇలా చెప్తుండొచ్చు కోర్టులో కేసు ఉంది కాబట్టి ఎలినేట్ చేయలేదు. కోర్టులో కేసున్న 400 పక్కన పెడితే మిగతా 1785 ఎకరాలన్నా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టాల్సింది ఉండే కదా అప్పుడున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, మా భూములు మాకే, ఇది కదా తెలంగాణ పంచాయతీ. బాగా చదువుకున్నావు కదా కేటీఆర్, మరి ఎందుకు 1785 ఎకరాలు 2012లో కలెక్టర్ రాస్తే 10 ఏళ్ళు మీరు భూములు వంచిర్రు, పైసలు వంచిర్రు, మస్తు తెలంగాణని బంగారు తుకుడా చేసిర్రు కదా. కనుక చదువుకునే పిల్లలకు భూములను ఎందుకు అలినేట్ చేయించలేకపోయినరు? మీ సీసీఎల్ఏ గారు వచ్చి మీకు చెప్పలేదా ఇది ఒక ఫైల్ పెండింగ్ ఉందని? తీసుకుందాం భూములు అనుకొని ఆపిరా? అసలు ఇంకొక దారుణమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దీని మొత్తం పంచాయతీ లోపల 534 ఎకరాలని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ తోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకొని అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎంఓఈలో కేటగిరికల్గా రాసిండ్రు. ఈ 534 ఎకరాల్లో అగ్రిమెంట్ రాసిన రోజు అన్న దయించి అర్థం చేసుకోవాలి మీడియా మిత్రులు, 397 ఎకరాలని ఈరోజు మీకు ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా మిగిలినటువంటి 134.08 ఎకరాలను అందులోంచి 50 ఎకరాలు 30 రోజులలో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం, 90 రోజులలో మిగతా భూమి మొత్తాన్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని చెప్పింది. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने संतोष नगर वाटर टैंक के करीब वाटर जंक्शन के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस काम से संतोष नगर, हसनाबाद और खलंदर नगर में पानी की सरबराही को मौसर बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा संतोष नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा इब्तिदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। के सामने वाटर वर्क्स के एक जंक्शन का काम शुरू हुआ। ये जंक्शन का काम का मेन मकसद ये था कि हमारे पास हुसनाबाद, खलंदर नगर, संतोष नगर, उधर के पूरे बिल्ड के अंदर पानी की तकलीफ आ रही थी, जिसमें यहाँ पर वॉल काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा था। अभी उसको आइडेंटिफाई करा है
इंशाल्लाह वो काम चालू है। एक बार अगर ये वाल का काम हो जाएगा तो ये एरिया के अंदर पानी का जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ताला पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी मौजूदा ये एरिया को जो पानी आ रहा है वो बालापुर से आ रहा है, अगर ये वाल अगर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला पूरा काम मुकम्मल होकर पानी के बेहतरीन यहाँ पर सप्लाई हो जाएंगे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब मौजूद है और मजलिस के दीगर जिम्मेदार भी मौजूद है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए जो जो कंप्लेंट आते हैं उसको रेक्टिफाई करती है, दूर करती है। अल्लाह के फजल करम से याकूब फरासम मल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे भी काम तेजी के साथ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दारुशफ़ा में वाक़ कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत की दीवार मुनहदिम हो गई है। दीवार के मुनहदिम होने से एक मारुति कार को भी नुकसान हुआ है, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतल्लिक़ा हुकाम ने भी मुक़ाम वाक़े का मुआयना किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात को यंग इंडिया पुलिस स्कूल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रंगारेड्डी ज़िले के मंचीरेवू में सुबह 9:45 पर यह तकरीब मुनक़िद होगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू भी तकरीब में शरीक होंगे। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने यंग इंडिया पुलिस स्कूल के क़याम को एक अच्छी पेशरफ्त करार दिया है। अपने पैगाम में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि यंग इंडिया पुलिस स्कूल आने वाली नस्ल को नज़्म ज़ब्त और क़ायदाना इक़दार सिखाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कूल में 50% नशिस्तें शहीद पुलिस मुलाजमीन, होमगार्ड्स, कांस्टेबल के बच्चों के लिए मुख्तस की जाएंगी। इसके लिए वाजबी फ़ीस का तयन किया गया है। माबाकी 50% नशिस्तें आम ज़ुमरे के लिए मुख्तस रहेंगी। The Telangana government has come up with a beautiful idea of starting a Young India Police School in Manchirevula area of Rangareddy district. As we all know, the lives of policemen are very difficult. They are unable to spend time on the education of their children or the welfare of their families because of the nature of their duties and the roles they play. 50% of the admissions will be reserved for children of martyrs, home guards, constables, up to the rank of even IPS officers with a reasonable fee structure, and 50% of the admissions will be left for the civilians. This school aims to provide international level education while following the core curriculum of CBSE standards. It aims at providing holistic development to the child by combining an equal measure of academics and sports and other co-curricular activities and creative-based learning. We are building a community where students feel supported and empowered to make a difference. We want them to understand the importance of contributing to society and becoming responsible citizens. The school aims to impart values of integrity, resilience, self-discipline, mental well-being and environmental stewardship to its students. Dear parents, this is a great chance for you to give your child an extraordinary start. Please apply now. हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मिड में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की अमवात के बाद सिद्दीपेट ज़िले में भी बर्ड फ्लू के बायस 20,000 से ज़्यादा मुर्गियों के फौत होने की इत्तला मिली है। पुलिस और वेटनरी शोबे के हुकाम ने
थोगुटो मंडल के कांगल देहात में वाक़ फार्म हाउस के पास बैरिकेड्स लगा दिए। फार्म में काम करने वाले मुलाजमीन के मुआयने किए गए हैं। अब तक 20,000 मुर्गियाँ फौत हो गई हैं। मज़ीद 50,000 मुर्गियों को तल्फ करने का भी फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में 20 टीमें तश्कील दी गई हैं। सिद्दीपेट के दूसरे फार्म्स पर भी नज़र रखी जा रही है। ब्लैक कलर हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी की मियाद में मजीद 1 साल की तोसी कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में जीओ जारी कर दिया गया है। एनवीएस रेड्डी की मियाद 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर की तरफ से ये जीओ जारी किया गया है। बीआरएस पार्टी आईटी सेल के इंचार्ज के दिलीप और डॉक्टर कृषांक से गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। वाज़ेह है कि गच्चीबौली कांचा अराजी मामले को लेकर किए गए पोस्ट और वीडियोस के सिलसिले में दिलीप और कृषांक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस सिलसिले में दोनों से पूछताछ हुई है। वक्फ क़ानून तरमीमात 2025 की शदीद मुखालिफत के बावजूद लोकसभा से मंजूरी को जमात इस्लामी हिंद ने मजहबी आज़ादी और आइनी हुकूक़ पर खुला हमला करार दिया है। जमात ने इन तरमीमात को न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक की बदतरीन मिसाल बताया बल्कि इसे एक बदनीयती पर मुबनी और काबिल मज़म्मत इक़दाम भी कहा। जमात ने ज़ोर दिया कि ये तरमीमात आइन की दफ़ात 14, 25, 26 और 29 की सरी खिलाफ वर्जी पर मुबनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ियाउद्दीन नैयर सदर तामीर मिल्लत, डॉक्टर शेख उस्मान सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्दुल नईम फैज़ी नायब सदर रहमत आलम कमेटी, फ़खरुद्दीन अली अहमद सेक्रेटरी और ज़ईमुद्दीन अहमद सेक्रेटरी मीडिया भी शरीक थे। जमात इस्लामी हिंद ने इन सियासी पार्टियों पर अफसोस का इजहार किया जो सेकुलरिज़म का दावा करती हैं लेकिन इस बिल की हिमायत की। जमात ने इन अपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बिल की पुरज़ोर मुखालिफत की। साथ ही तमाम सेकुलर ताकतों, क़ानूनी माहिरीन और अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो इस गैर आइनी क़ानून को अदालत में चैलेंज करें। उसको बिल्कुल हम आखिर तक मुस्लिम पसंदा बोर्ड हो या जमात इस्लामी हो या तामीर मिल्लत हो या और जो जितने भी यहाँ तंजीमें हैं सभी मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात पर कायल हैं कि जो क़वानीन पेश किए गए गुज़िश्ता हफ्ते ये बिल्कुल नाकाबिल क़बूल हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के ज़रिए अवाम उन्नास में इस तहरीक को चलाया जाए, लेकिन अफसोस सद अफसोस
कि जो हम तकरीबन 100 साल से इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रह रहे हैं और आइंदा रहना चाहते हैं। और ये उनके आबा व अजदाद का मुल्क है, उनका मुल्क है, आने वाली नस्ल का मुल्क है और उसकी हिफाजत करना हमारी आइन जिम्मेदारी है। को अपने मजहबी इदारों को चलाने के हक़ की ज़मानत दी गई है। ये बिल न सिर्फ आइन के दफ़े 26 के बल्कि दफ़े 14 और दफ़े 25 के भी खिलाफ है। हम इस बात का यादा करते हैं कि वक्फ जायदादें मजहबी औक़ाफ़ हैं, कोई रियासती असासा नहीं है। रहा ये दावा कि मुसलमानों को वक्फ एक्ट के तहत खुसूसी हुकूक़ हासिल हैं, ये इंतहाई सरासर गलत बात है। वक्फ एक्ट 1995 और 2013 में मुसलमानों को औक़ाफ़ के हवाले से वैसे हुकूक़ अता किए गए हैं जैसे दीगर क़वानीन के तहत दीगर मजहबी तबक़ात को दिए गए हैं। पार्लिमानी बहस के दौरान पेश किए गए गुमराहकुन दलाइल पर हम गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। वक्फ बोर्ड की नौयत चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर की तरह नहीं है, चैरिटी कमिश्नर की तरह नहीं है, जैसा कि लोकसभा के बाज़ अरकान के ज़रिए दावा किया गया है। मुतअद्दिद रियासतों में हिंदू और सिख औक़ाफ़ के लिए खुसूसी क़वानीन मौजूद हैं। अभी मैं आपके सामने ये भी बात रखूं कि जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है वो गवर्नर मुसलमान नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता कि वो गवर्नर वहाँ के अमरनाथ जो ट्रस्ट है उस बोर्ड का भी वो डायरेक्टर होता है। तो उसमें ये तय किया गया है कि अमरनाथ गवर्नर बोर्ड का जो गवर्नर जो है, जो डायरेक्टर है, वो हिंदू ही हो सकता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के गवर्नर को भी जो है मुसलमान को नहीं बनाया जाता है। तो ये इस तरह के क़वानीन हमारे पास मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड की साख्त में जबरन तब्दीली करके उसके अराकीन में गैर मुस्लिम अफराद को शामिल करने का फैसला दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी से उनके मजहबी व फलाही असासों का इंतज़ामी हक़ छीनने की कोशिश है और इसी नीयत से ये एक्ट जो है लागू किया गया है, ये कानून बनाया गया है। ये एक्ट सरकारी हुक्काम को वक्फ मामलों में मुदाखलत करने का हक़ देता है, जिससे इन हुक्काम के लिए मनमाने ढंग से वक्फ जायदादों पर कब्जा करने का रास्ता आसान हो सकता है, जो कि वक्फ के औक़ाफ़ के लिए वजूद के लिए खतरे का बाज़ बनेगा। इस तरमीम की वजह से सरकार वक्फ जायदादों पर कब्जा कर सकती है। इस बिल के ज़रिए मुस्लिम कम्युनिटी को उनके जायज़ मिल्कियती असासों से महरूम करने का रास्ता साफ कर दिया गया है, जिसकी ज़द में मुतअद्दिद इबादत गाहें, स्कूल, कॉलेज और क़ब्रस्तान आ जाएंगे। वक्फ बाई यूज़र में तब्दीली और नए औक़ाफ़ के लिए सख्त तरीक़ों के शर्तों के इजाफे से साफ तौर पर वाज़ेह होता है कि मुस्लिम इदारों को मुनज़्ज़म तरीक़े पर, ऑर्गेनाइज तरीक़े पर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इस एहतजाज में साथ खड़ी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी इन सियासी पार्टियों के तई मायूसी और अफसोस का इजहार करती हैं जो सेकुलरिज्म और गैर जानिबदारियत का दावा करते हैं लेकिन इस बिल की हिमायत की है। वहीं हम उन अपोजिशन पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बिल की पुरजोर मुखालिफत की। साथ ही उन सेकुलर ताकतों और कानूनी माहिरीन से पुरजोर अपील करते हैं कि उस एक्ट को चैलेंज करें। ये बिल आइन की दफ़ा 14, 25, 26 और 29 के सरासर खिलाफ है। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों के साथ मिलकर इस जाबिराना कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत करते हैं और इस गैर मुनसिफाना और गैर आइनी कानून को ख़त्म करने के लिए तमाम जायज़ कानूनी, आइनी और जमहूरी तरीक़े हम इख्तियार करेंगे। तहरीक खैर उम्मत के सदर मुनीरुद्दीन मुजाहिद ने मुसलमानों से अपील की है कि वक्फ एक्ट में किए गए तरमीमात के ख़िलाफ़ अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों के बशमूल तमाम सेकुलर आवाम से अपील की है कि वो टैंक बॉन्ड पर 13 अप्रैल को और 26 अप्रैल को इंदिरा पार्क पर मुनज़्ज़म होने वाले एहतजाजी धरनों में शरीक हों और इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत इस कानून के ज़रिए मुसलमानों के औक़ाफ़ी जायदादों पर बुरी नज़र रखी हुई है। उन्होंने इस कानून को आइन की मुख्तलिफ़ शक़ों से टकराव बताया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस कानून को वापस लें। बात सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगी तो इस काले कानून की हर दफ़ा की इंशाअल्लाह धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी।
इस सिमत में हमारी अपनी जो मुखालिफतें हैं, कल तक बिल की मुखालिफत करते रहे थे, अब हम इस काले क़ानून की मुखालिफत करने जा रहे हैं और फिर उस वक्त तक हमारी ये मुखालिफत ये जिद्दोजहद की शक्ल में जारी रहेगी ताकि ये काला क़ानून मनसूख ना हो जाए। इस ज़िम्मन में उम्मत के ज़िम्मेदारों ने बिलखुसूस ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अहम शहरों में एहतजाजी धरने मुनाकिद किए, रैलीज़ मुनाकिद किए। चुनांचे दिल्ली में एक फ़ुक़ैदुल मिसाल धरना हुआ, उसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला। पटना में बहुत अजीम शान एक धरना हुआ जिसमें सेक्युलर लीडरों ने इंतहा दर्जे की मुसलमानों के साथ एकजहती का मुजाहरा किया। उसके अलावा आंध्रा के शहर विजयवाड़ा में भी धरना पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में जमात इस्लामी के ताउन से मुनाकिद किया गया। उसमें भी हमने अपने अहबाब के साथ शिरकत की। अज़ीज़ान गिरामी, हैदराबाद शहर पर नज़रें दुनिया भर की टिकी होती हैं कि उम्मत पे जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो हैदराबाद के मुसलमान ही नहीं, हैदराबाद के हसास गैर मुस्लिम शहरी भी मुसलमान दोस्तों के साथ एहतजाज में शामिल होते हैं। चुनांचे यहाँ पे 13 तारीख़ को यानी इतवार को एक एहतजाजी धरना मुनाकिद होने जा रहा है टैंक बंड के ऊपर, जिसके कन्वेनर हमारे अपने शहर के औक़ाफ़ के लिए इंतहाई जिद्दोजहद करने वाले मोहम्मद उस्मान हाजरी साहब और उनके साथी शेख अकबर साहब भी हैं और बहुत सी जमातों और तंजीमों का ताउन भी इन्हें हासिल है। इस धरने को कामयाब बनाना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। इतवार के दिन 2 बजे से हमें वहाँ मार्च करना होगा और उस धरना में मुल्क के अहम कायदीन भी इंशाअल्लाह मुखातिब करेंगे। अज़ीज़ पाशा साहब साबिक़ MP भी हैं और सभी जमातों के मुस्लिम सरबरा इसको मुखातिब करेंगे। नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ में जराइम की दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। साइबराबाद SOT ने हैदराबाद के नवाही इलाके मोइनाबाद में मुजरा पार्टी को बेनकाब करते हुए 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर एतबार पल्ली में वाक़े सर्वे नंबर 18 पर वाक़े हॉलीवुड होम फार्म हाउस पर धावा किया गया। बताया जाता है कि गिरफ्तार शुदगान में 6 ख़वातीन भी शामिल हैं और इन ख़वातीन का ताल्लुक़ मुंबई और मगरबी बंगाल से बताया गया है। पुलिस ने बताया कि अब्दुल लुकमान नामी शख्स ने अपनी सालगिरह के लिए पार्टी का एहतमाम किया था। फार्म हाउस में इन ख़वातीन को रक़्स के लिए लाया गया था। धावे के दौरान पुलिस ने 70 ग्राम गांजा, शराब की बोतलें, 25 मोबाइल फ़ोन्स, 6 गाड़ियाँ और हुक्के का सामान जब्त किया है। लड़कियों को लाने वाले ब्रोकर्स के नाम बाबू और रीना बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि फार्म हाउस के मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये पार्टी बिना इजाज़त मुनक़िद की गई थी। गिरफ्तार शुदगान ताजिर पेशा बताए जा रहे हैं। तहवील में ली गई ख़वातीन को रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। బాబు విషయంలో ఇక తెలియదు, వెరిఫై చేయాల్సింది ఇన్వెస్టిగేషన్. ఎవరు సార్ బర్త్డే పార్టీ ఎవరిది అసలు? వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళంతా కూడా ఎవరు? లైక్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో? అందరూ బిజినెస్ పర్సన్స్. అబ్దుల్ లుక్మాన్ అని చెప్పాను, అతని బర్త్డే ఉన్నది, దానికోసం అతని ఫ్రెండ్స్ ఇన్వైట్ చేసి అతనే ఈ గాంజాని కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. తెలిసిన వ్యక్తి అడ్డు అనే అతని వ్యక్తి. ఫామ్ హౌస్ ఓనర్ ఎవరు సార్? ఫామ్ హౌస్ ఓనర్ ఇప్పుడు అబ్దుల్ బిన్ అని చెప్పి తెలిసింది. రికార్డు పరంగా కూడా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకుంటే కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళని అడిగితే అబ్దుల్ బిన్ అనే అతని ఫామ్ హౌస్, అతను కూడా నేరస్తుడిగానే ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. పార్టీ జరుపుకోవడానికి ఏమైనా పర్మిషన్ ఏమైనా తీసుకున్నారు? ఎలాంటి పోలీస్ పర్మిషన్లు లేవు. ఇలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు జరిగేటువంటి పోలీసు ఎవరు కూడా పర్మిషన్ లేవు. ముందస్తుగానే మేము ఫామ్ హౌస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఎలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు ఈ ఫామ్ హౌస్లో అద్దెకి ఇవ్వకూడదు, ఇచ్చినట్టయితే కేసు రిజిస్టర్ చేయకూడదని చెప్పండి. ఈ క్రమంలో గతంలో కూడా చాలా కేసులు అయినాయి. ఈ ముజరా పార్టీ కూడా గతంలో ఒకసారి అయితే కేసు పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళ మీద ఓనర్స్ మీద కూడా ఈ కేసులలో ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళని బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ సెక్షన్స్ కింద కేసు ఉంటుంది సార్? ఈ BNS కొత్త సెక్షన్ల ప్రకారంగా 144 క్లాస్ 2 BNS ఒకటి, వైలేషన్ చేసినందుకు 223, 292,
BNS కేసు చేసినాం. ఈ గాంజాయి కలిగి ఉన్నందుకు 8C రెడ్ విత్ 20B క్లాస్ 2A 25 29 NDPS కింద కేసు చేసినాం. అదేవిధంగా లిక్కర్ కూడా ఉన్నందుకు 34A ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో కేసు చేసినాం. లిక్కర్ ఎన్ని అంటే లీటర్స్ ఆఫ్ లిక్కర్ సుమారుగా 3 లీటర్స్ ఉంటుంది. అంత మద్యం పరిమాణం అయితే ఎక్కువ లేదు, కానీ పర్మిషన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఏదన్నా ఒక కమర్షియల్ ప్లేసెస్లో లిక్కర్ కన్జంప్షన్ చేస్తున్నట్టు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అట్లాంటి పర్మిషన్ వీళ్ళు ఎవరు తీసుకోవాలి. ఈ బర్త్డే పర్సన్ ఎక్కడ సార్ ఏరియా? అట్ ది సేమ్ టైం మిగతా వాళ్ళు అంతా కూడా సిటీకి చెందిన వాళ్ళైనా? అందరూ సిటీకి చెందిన వాళ్ళే. ఇతను కూడా హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీకి చెందిన వాళ్ళు. అబ్దుల్. हैदराबाद के नवाही इलाके वनस्थलीपुरम में प्लॉट्स ओनर्स और पट्टेदारों के दरमियान झड़प में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि सर्वे नंबर 240 पर बाज़ अफराद ने प्लॉट खरीदे थे, लेकिन उन्हें कब्जा नहीं दिया गया था। ये मामला अदालत में भी ज़ेरे दौरान है और जब चारशंबे को प्लॉट ओनर्स और अराजी पर पहुंचे तो पट्टेदारों के साथ उनकी झड़प हो गई। एक दूसरे पर संगबारी की गई। बाज़ टू व्हीलर्स को आग लगा दी गई और बस को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये प्लॉट्स कुम्मागुड़ा में बताए गए हैं। पुलिस की भारी जमीयत को मुकाम वाक़े पर तैनात कर दिया गया है। 10 एकड़ अराजी पर ये प्लॉट्स बताए जा रहे हैं। प्लॉट्स ओनर का ये कहना था कि पट्टेदार गुंडों के जरिए उन्हें हिरासा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उन्होंने प्लॉट्स खरीदे थे और अब वो यहाँ पर मकानात बनाना चाहते हैं। బండ్లు తాగబెట్టుకుర్రు బండ్లు కూడా అక్కడ రాళ్ళకి కూడా మీడియా 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 వాళ్ళం కష్టపడుతున్నారు వీళ్ళు. అసలు పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తలేరేమో? వాళ్ళేం సపోర్ట్ చేస్తలేరు. వాళ్ళకేమన్నా ఇస్తున్నారు? వాళ్ళు ఎన్నడో అమ్మిన ఫ్లాట్లు ఇప్పుడు వాళ్ళవి ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు అందరు దీని ఆడవాళ్ళు रंगारेड्डी जिले शमशाबाद तांडापल्ली टोल प्लाजा के पास टोल मुलाजिमिन पर मुबैना हमले का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। सीसीटीवी कैमरे में ये मंजर कैद हुआ है। टोल मुलाजिमिन ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक शख्स टोल की रकम देने से इनकार कर रहा था और जब इसरार किया गया तो उसने टोल मुलाजिमिन पर मुबैना हमला किया। हमला करने वाले शख्स की शिनाख्त राजेंद्र नगर किस्मतपुर के साकिन संतोष गौड़ की हैसियत से की गई है।
तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के फर्जंद मंचू मनोज ने चारशंबे को फिर अपने वालिद के घर के पास धरना दिया। मोहन बाबू की जलपल्ली की ख़यामगाह के पास चारशंबे को उस वक्त कशीदगी देखी गई जब मंचू मनोज घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई और मनोज को मशवरा दिया कि मज़ीद कशीदगी से गुरेज किया जाए। मंचू मनोज को अपने वालिद की ख़यामगाह के पास धरना देते हुए देखा गया। मंचू मनोज का कहना था कि उनकी कार और दूसरा सामान घर के अंदर मौजूद हैं और वो उसे लेने आए हैं। जब घर से उन्हें कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने मजबूरन धरना दिया। ఉన్నదాన్ని ఎందుకు ఇట్లా చేస్తారు? तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुलुगु ज़िले में क्लिनिक पर धावा करते हुए भारी मिकदार में गैर कानूनी अद्वियात को जब्त किया है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से अद्वियात का ज़ख़ीरा किया गया था और इसकी मालियत 18,000 रुपये बताई गई है। ये भी बताया गया है कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक 159 केसेस दर्ज किए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नई दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया धरना नाकाम, बीआरएस कायद हरीश राव ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में तमाम तबक़ात खुशहाल, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। मोइनाबाद में जारी मुजरा पार्टी में एसओटी साइबराबाद का धावा, 14 अफराद ज़ेर हिरासत, गांजा और शराब की बोतलें बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।